Good morning, students. Hope you all are fine. In the previous lecture, we have studied about friendly adsorption isotherm and a large number of application of adsorption. Now, today we start a very simple or important topic of this unit, that is catalysis. So, first, what do you mean by catalyst? As you already know, substances which can change the speed of chemical reaction. जो सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन. खुद उनके मास में और उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज कैटलिस्ट एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटलिसिस. जो सब्सटेंस रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ. जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एज इट इज़ रिमूव हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इन इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन आर नोन एज कैटलिस्ट. Study of effect of various catalysts on the speed of chemical reactions was first made by Berzelius in 1835. सबसे पहले जो स्टडी किया गया इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस वो किसने स्टडी किया था? बर्जेलियस ने इन 1835. ये देखिए रिएक्शन. द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस. When this reaction occurs without catalyst, then decomposition of potassium chloride requires high amount of heat, about 380 degrees Celsius to 600 degrees Celsius. But when this reaction occurs with catalyst, with the help of catalyst MnO2, इसमें याद रखना है आपको ये कैटलिस्ट MnO2, then this reaction occurs at a low temperature of about 200 to 350 degrees Celsius. तो आप ये देखिए, अगर हम इस रिएक्शन को विद कैटलिस्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पे हो रही है, रिएक्शन की स्पीड भी फास्ट हो रही है एज वेल एज जो है वो फ्यूल भी कम खर्च हो रहा है. ठीक है, फ्यूल की सेविंग भी हो रही है. जो रिएक्शन 4-5 आवर्स में हो रही थी विद कैटलिस्ट, वो रिएक्शन विद इन 10 या 15 मिनट्स हो जाएगी. तो कैटलिस्ट आर यूज टू स्पीड अप द रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन MnO2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन and fast the reaction occurs at low temperature 200 to 350 degree Celsius. तो ये डिफरेंस है those reactions which occurs without catalyst और with catalyst. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट, इफ कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन then it is known as positive catalyst. If catalyst decreases the speed of reaction, then it is called negative catalyst. जैसे इस रिएक्शन में देखिए, in a contact process for manufacturing of H2SO4, one of the reaction is this: oxidation of SO2 to form SO3. SO2 plus O2 give SO3. When in this reaction we used catalyst vanadium pentoxide or nitric oxide, they act as a positive catalyst. This catalyst increases the speed of reaction, increase the rate of reaction. Next देखिए, decomposition of hydrogen peroxide gives water and O2. इसमें कई बार क्या होता है, कुछ स्टेप्स में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिक्वायरमेंट है तो वी नीड अ नेगेटिव कैटलिस्ट. तो हमें रिएक्शन की स्पीड को कम करना पड़ेगा. हियर वी यूज H3PO4. देन दिस H3PO4 एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट. If we use glycerol or acetanilide, then they also act as a negative catalyst for this reaction, an organic compound acetanilide. All these three compounds act as a negative catalyst for this reaction. ठीक है, याद रखना है आपको. देखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कैसे इंक्रीज करता है? बाय लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. और नेगेटिव कैटलिस्ट decreases the speed of reaction by increasing the activation energy of reaction. It means rate of a reaction is inversely proportional to activation energy. Lower the activation energy, faster is the speed of reaction. देखिए, अब आप इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखिए. अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट, रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी
and then their energy becomes equal to threshold energy, and they reach to that energy barrier, and then they forming the product. Minimum amount of energy that reactant molecule must have to change into product, that is threshold energy. Amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold energy is known as activation energy. रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इस बैरियर तक पहुंचने के लिए वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी. एज कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन देन दे डिक्रीजेज द हाइट ऑफ दिस एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्शन. देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये जो एनर्जी बैरियर है इसकी हाइट को कम करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. सो मोर एंड मोर रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स बाय सप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ energy will change into the product. So low the activation energy, faster is the speed of reaction. देखो this curve is in absence of catalyst or this small height curve in presence of positive catalyst. So positive catalyst decrease the height of energy barrier. Now here see in this case, in case of negative catalyst, देखिए ये वाला जो कर्व है ये इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर ऑफ दिस रिएक्शन. इंक्रीज करते हैं इसकी हाइट, इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं. इट मीन्स मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज. सो नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस एनर्जी बैरियर एंड डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. देखो इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट बट डू नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट, एंड कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बोथ इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सो इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम एंड इट डज नॉट इफेक्ट द हीट ऑफ अ रिएक्शन. सिमिलरली इन केस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम एंड डज नॉट चेंज द हीट ऑफ अ रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स रिमेन्स सेम in presence of catalyst or in absence of catalyst. So catalyst does not change the heat of a reaction but change the activation energy of the reaction. ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है कि लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन और इन हायर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर विल बी द स्पीड ऑफ रिएक्शन. और कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट देखिए, हमारे पास टू टर्म्स और होते हैं रिलेटेड टू कैटलिस्ट, कैटालिटिक प्रमोटर और कैटालिटिक पॉइजन. देखिए कैटालिटिक प्रमोटर क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के साथ हेल्पर का काम करते हैं उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. बट जो कैटालिटिक पॉइजन होते हैं वो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बट जो पॉइजन है वो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. जैसे एक वेल नोन एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. हेयर वी यूज नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया. इन दिस रिएक्शन आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रमोटर for iron. Molybdenum helps the catalyst iron to speed up the reaction to increase the activity of the catalyst. But instead of molybdenum, if in this reaction we used arsenic oxides या carbon monoxide, then they act as a catalytic poison. क्लियर है. देखिए प्रमोटर किस तरह से रिएक्शन की एक्टिविटी जो है मतलब स्पीड को बढ़ाते हैं, रिएक्शन की हेल्प करते हैं कैटलिस्ट की. देखो सपोज ये कैटालिटिक सरफेस है, आपने जैसे पहले भी पढ़ा है जितना ज़्यादा ये सरफेस रफ होगा उतनी रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी, उतना रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन फास्ट होगा. प्रमोटर इंक्रीजेज द रफनेस ऑफ द कैटालिटिक सरफेस. ये सरफेस जो कैटालिस्ट का सरफेस है इसकी रफनेस को बढ़ाते हैं. रफनेस के बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है. देखिए फर्स्ट सरफेस एरिया इंक्रीजेज, जो फ्री वैलेंसीज हैं एक्टिव साइट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, तो जिससे एड्जॉर्प्शन बिकम फास्टर एंड कैटलिस्ट बिकम मोर एक्टिव in presence of catalytic promoter. So remember, promoter increase the roughness of the catalytic surface.
पॉइजन, देखिए पॉइजन कैसे डिक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन। सपोज देखिए ये कैटालिटिक सरफेस है, हेयर दिस इज an active sites of a catalyst on which adsorption occurs. These are the active sites of on the surface of the catalyst on which reactant molecules get adsorbed. इसमें क्या होता है, व्हेन किसी भी रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट्स भी हैं, कैटलिस्ट भी है और पॉइजन भी है। तो पॉइजन क्या करेगा, पॉइजन्स जो होते हैं दे आर preferentially adsorbed at the active sites of the catalyst as compared to the reactants. रिएक्टेंट्स के आने से पहले ही पॉइजन्स जो होते हैं दे प्रेफरेंशली एडजोर्ब ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ द कैटलिस्ट, और एक्टिव साइट्स क्या हो जाएंगी, फिर ब्लॉक हो जाएंगी। रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को कम स्पेस अवेलेबल होगा फॉर एडजॉर्प्शन, और जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Remember, poisons are preferentially adsorbed at the active sites of the catalyst as compared to reactants and block the active sites of the catalyst and then decrease the activity of the catalyst. ठीक है, promoter increase the roughness of the catalyst and poisons are preferentially adsorbed at the active sites of the catalyst as compared to the reactants and block the active sites, then decreases the activity of the catalyst. So these are the two terms, catalytic promoter and catalytic poison. Now next, types of catalysis. Two type of catalysis are here depending upon the phase of catalyst and reaction mixture. देखिए homogeneous catalyst, when reactant and catalyst are in same phase then the process is called homogeneous catalysis. Or when reactants or catalysts are in different phase then the process is known as heterogeneous catalysis. Homo means same. देखो अगर जो reactions में हम catalyst यूज़ कर रहे हैं और जो reactants यूज़ कर रहे हैं both are in same phase. Let's see here, SO2 is a gas, O2 is also a gas. NO catalyst यूज़ हो रहा है इस reaction में, वो भी क्या है, gas. If reactants and as well as catalyst are in the same phase then catalysis is known as homogeneous catalysis. Now one more example, see here, hydrolysis of ester solution form liquid, water is also a liquid, or catalyst used in this reaction HCl also in a liquid form. So both reactants as well as catalyst are in the same phase, either in liquid form or in gaseous form. Sucrose, hydrolysis of sucrose gives one molecule of glucose or one molecule of fructose. Here also reactants and catalysts are in same phase, but in this reactants और catalysts are in different phase. जैसे कि अभी हमने पढ़ा in Haber process, reactants are gases, nitrogen is a gas, H2 is a gas, but here catalyst used iron is a solid. So जनरली इन रिएक्शंस में हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है वो सॉलिड होता है और रिएक्टेंट्स जो होते हैं आइदर लिक्विड और गैस होंगे मोस्टली. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अमोनिया इज़ अ गैस बट O2 इज़ अ, यहाँ पे O2 भी क्या है, गैस, बट कैटलिस्ट जो यूज़ हो रहा है इस रिएक्शन में प्लेटिनम वो क्या है, सॉलिड. तो कैटलिस्ट डिफरेंट फेस में है देन रिएक्टेंट्स. सो दिस कैटलिसिस इज नोन एज हिट्रोजीनियस कैटलिसिस. ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन of vegetable oils. Vegetable oils are in liquid form, hydrogen is a gas, but catalyst here is a nickel is in solid form. So it is an example of heterogeneous catalyst. Now more about these homogeneous or heterogeneous catalyst by comparing these two. First, जैसे कि हमने पढ़ा है catalyst and reactants are in single phase, but in this catalyst and reactants are in different phase. Reaction occurs in the liquid phase or either in gas phase. देखो या तो reactants और catalyst दोनों ही क्या होंगे, gaseous phase में होंगे, या either reactants और catalyst are both are in liquid phase. तो reactions occurs होती है in liquid phase और gas phase. But in this heterogeneous catalysis reaction does not occurs in liquid or gas phase. बट ये कहाँ पे होती है, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट.
in most of the cases in heterogeneous catalysis, catalyst is solid. So reaction occurs on the surface of the solid catalyst. So this catalysis is also known as surface catalysis, because in this reaction entirely occurs on the surface of the catalyst, or reaction entirely depends on the surface area of the catalyst. इसमें देखिए, एज वी नो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज, सो वी कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड from the product of the reaction. Catalyst cannot be easily separated from the product. But in this, as we know, catalysts are in solid form, so catalyst can be easily separated from the reaction product. As in this, catalyst or reactants are in same phase, so these catalyses are little faster than heterogeneous mechanism, or these catalyses are little bit slower than that of homogeneous कैटलाइज्ड रिएक्शन. नाउ अगर हम बात करें कि जो रिएक्शन है इन होमोजीनियस कैटलिसिस वो किस तरह से हो रही है, उसका क्या मैकेनिज्म है, प्रोसीजर क्या है, तो जो मैकेनिज्म होमोजीनियस कैटलिसिस की रिएक्शंस फॉलो करती हैं वो होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. इस मैकेनिज्म पे बेस्ड है. देखिए इसमें क्या होता है, रिएक्शन जब प्रोसीड होती है, रिएक्शंस नॉट अकर इन वन स्टेप, reaction occurs in more than one steps, or during the mechanism an intermediate will be formed between the reaction through which product will be formed. जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए अब आप इस रिएक्शन से, सल्फर डाइऑक्साइड गैस combined with O2 gas to form SO3 gas in presence of gaseous catalyst NO नाइट्रिक ऑक्साइड. तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप देखिए, any one of the reactant from these two reactants react with the gaseous catalyst O2 reactant first react with catalyst nitric oxide, and then they forming an intermediate NO2. This is an intermediate NO2. Then the intermediate NO2 react with other reactants SO2 and finally form a product SO3. And then they again regenerated a catalyst NO for more and more O2 reactant molecules to react with. तो इस तरह से with the help of intermediate formation product will be formed in this reaction. That's why this homogeneous catalysis is known as intermediate compound formation. In every reaction, those reactions which occurs in more than one steps, intermediates will be formed, and that this intermediate will give rise to the formation of the product. And catalyst again regenerated without change in its mass and in its composition. इसमें देखिए अब इन heterogeneous catalysis देखो क्या होता है. पहले ऐसा कहा जाता था अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी, जो कैटलिस्ट होता है, जैसे हमने पढ़ा है कैटलिस्ट आर इन दिस कैटलिसिस इन सॉलिड फेस, तो सारी की सारी रिएक्शन कहाँ होगी, ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. तो जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स होते हैं फर्स्ट एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट एंड देन दे फॉर्मिंग द प्रोडक्ट. बट इन दिस ऑल्सो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. इन रिएक्शंस में भी क्या होता है, इंटरमीडिएट भी बनता है. तो दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एज वेल एज ऑन एड्जॉर्प्शन टेक्निक. सो वी यूज this mechanism, modern adsorption theory, for heterogeneous catalysis. This theory is the combination of both these two theories, intermediate compound formation theory and old adsorption theory. तो इन दोनों की combined theory है ये. इसमें आपको सरफेस मैकेनिज्म भी ऑब्जर्व होगा कि रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स सरफेस पे कैटलिस्ट के एड्जॉर्ब हो रहे हैं, और एज वेल एज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन भी होगी. तो अब ये कंबाइंड थ्योरी को अब हम स्टडी करेंगे. देखिए अब इसके हम अगर स्टेप्स देखें कि किन किन स्टेप्स के थ्रू रिएक्शंस कंप्लीट होती है, तो टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू रिएक्शंस कंप्लीट होगी. देखिए ये 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर. अब डायग्रामेटिकली हम इसको देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. देखिए फर्स्ट देखिए, दिस इज अ कैटालिटिक सरफेस विद फ्री वैलेंसीज. दीज आर द एक्टिव साइड्स ऑफ द कैटलिस्ट. ये देखिए ये एक्टिव साइड्स हैं कैटलिस्ट के जहाँ पे रिएक्शंस होनी है. ए और बी, ये क्या है, ए प्लस बी, दीज आर द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स.
रिएक्टेंट मोलिक्यूल। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, जैसे कि यहाँ पे एरो पे लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप है कि जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं, सपोज ये गैसेज हैं, ये डिफ्यूज होंगे टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। देन सेकेंड स्टेप होगा एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स बाय अ लूज बॉन्ड, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स फॉर्मिंग लूज बॉन्ड आफ्टर द डिफ्यूजन टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द catalyst, they adsorb on the surface of the catalyst by loose bonds, कमजोर बॉन्ड, यहाँ पे वीक बॉन्ड बनेंगे ये reactant molecules held by a weak bonds, just like in case of physical adsorption हमने पढ़ा है कि adsorbate molecule held on the surface of adsorbent by weak forces, weak van der Waals forces, तो यहाँ पे वही weak bond, loose type of bonds formed between catalyst surface and A and B. Now third step is the formation of intermediate. Then after a chemical change, a new bond will be formed between A and B as well as with the active sites of the catalyst. So here we see a new intermediate formed at the surface of the catalyst AB, that is also attached with the surface of the catalyst, or here a new bond formed between A and B. Now this is a third step, occurrence of chemical reaction forming an intermediate. This is an intermediate. Next fourth step है डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मोलिक्यूल, एज अ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ए बी, जैसे कि रिएक्शन थी A प्लस बी गिव्स ए बी, जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा डिजॉर्प्शन हो जाएगी इसकी, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मोलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। इसमें डिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एज प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड it is removed from the surface of the catalyst, then surface of catalyst becomes free for new reactant molecules to attack, get adsorbed and form an intermediate, and then they forming a product. So desorption. Next last step, diffusion of product molecule. As product diffused, as product formed on the surface of the catalyst, they get diffused away, and then the surface of the catalyst as it is regenerated without changing its mass and chemical composition for new reactant molecules. So this is all about the mechanism of heterogeneous catalysis. First, reactant molecule diffuse towards the surface of catalyst, then they adsorb by forming a loose bonds. After that, they forming a unstable intermediate at the surface of the catalyst. So or after the product will be formed, after the chemical bond will be formed between A and B, they get dissolved from the surface of the catalyst and diffused away from the surface of the catalyst. So these are the 5 steps by which heterogeneous catalysis mechanism proceed. Now देखिए एडवांटेज क्या है इस heterogeneous mechanism की, they have large number of advantages. देखिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट, जब भी कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की हेल्प से हो रही है तो उसमें हम क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी हमें। देखिए एक तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट सफिशिएंट है बिकॉज कैटलिस्ट रीजनरेट हो रहा है, जैसे आपने देखा है दोबारा से जो सरफेस है इसका फ्री हो गया। तो व्हेन वी अकर्स अ सरफेस मैकेनिज्म in case of solid catalyst, small quantity of catalyst is sufficient, not very large quantity of catalyst is required. Next, catalyst remains unchanged in mass as well as in chemical composition. Catalyst के मास में और उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जैसे कि हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में जिस तरह से हमने लिया था सेम एज इट इज़ दोबारा रीजनरेट हो गया रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद एज इट इज़, मास और कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। अगर हम कैटलिस्ट के साथ कैटालिटिक पॉइजन लेते हैं तो इन दिस मैकेनिज्म कैटालिटिक पॉइजन्स आर प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब ऑन द कैटालिटिक सरफेस एंड देन दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे पहले भी हमने बताया, देखो इंस्टेड ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कैटालिटिक पॉइजन ब्लॉक द एक्टिव साइट्स ऑफ द कैटलिस्ट एंड देन दे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। But this mechanism not explain the action of catalytic promoter.
ये ध्यान रखना आप, ये जो मैकेनिज्म है ये कैटालिटिक प्रमोटर का जो एक्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं करता, बट कैटालिटिक पॉइजन्स को हम क्लियरली इसमें हम मैकेनिज्म में स्टडी कर सकते हैं कि दे आर प्रेफरेंशली एड्सॉर्ब ऑन द कैटालिटिक सरफेस इंस्टेड ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, नाउ सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। फर्स्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स how much is the catalyst is active. How much is the catalyst active is the ability of catalyst to increase the speed of reaction. कितना ज़्यादा एक्टिव है कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन की फास्ट को बढ़ाने के लिए। ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। फास्टर केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, फास्ट विल बी द रिएक्शन। जितनी जल्दी गैस एड्सॉर्ब होएगी बाय अ केमिकल बॉन्ड और जितनी जल्दी वो रिमूव होएगी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उतनी ज़्यादा कैटलिस्ट एक्टिव होगा। ना तो गैस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने विद द कैटलिस्ट, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो फिर वो डिसॉर्प्शन में प्रॉब्लम होएगी। डिसॉर्प्शन भी फास्ट होनी चाहिए और कीमिसॉर्प्शन भी फास्ट होनी चाहिए। देन द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट विल बी मोर टू स्पीड अप द रिएक्शन। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए, combination of H2 or O2 in presence of platinum to form a H2 is highly explosive reaction. But when this reaction occurs without catalyst, then they require so much time to form a water, or we can store H2 and O2 for a long time. But in that case, if we use a platinum catalyst, then this reaction is highly explosive, very fast reaction. सो इससे आपको क्लियरली पता लग रहा है कि कितना एक्टिव है कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। एक्टिविटी मीन्स एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सिलेक्टिविटी। कैटलिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। अगर हमारे पास सेम रिएक्टेंट्स हैं, वी यूज डिफरेंट कैटलिस्ट, देन डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग सेम रिएक्टेंट्स। डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग सेम कैटलिस्ट। इन अनदर वर्ड हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हर कैटलिस्ट की अपनी एक एबिलिटी होती है कि वो रिएक्शन को डायरेक्ट करता है फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स सेम है इन तीनों रिएक्शंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस, बट कैटलिस्ट आर डिफरेंट। Here we use copper as a catalyst, then product will be methanol, HCHO. If we use catalyst copper or zinc oxide in presence of chromium oxide, then product is methanol, CH3OH. Here methanol will be formed. If we use nickel as a catalyst, then we will get methane plus water. These reactions are very very important. जो इनके प्रोडक्ट्स हैं विद कैटलिस्ट, ये हाईली सिलेक्टिव हैं, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है कंप्लीट द रिएक्शंस। तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों में कि अगर कैटलिस्ट डिफरेंट है, देन दे फॉर्मिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ सेम रिएक्टेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। वन मोर एग्जाम्पल हेयर, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Ethyne on addition of hydrogen gives ethene. Ethene on addition of hydrogen give ethane. When this reaction occurs in presence of platinum, palladium या nickel as a catalyst, then complete hydrogenation occurs and ethane will be formed. But if this reaction occurs in presence of palladium, barium sulfate with some catalytic poison, quinoline या sulfur compounds, then these catalyst act as a catalytic poison and then they retard the speed of reaction and the product formed will be ethene, not ethane. Reaction complete hydrogenation नहीं होगी, ethene पे ही रुक जाएगी because this quinoline act as a catalytic poison. This catalyst palladium in presence of barium sulfate spotted over quinoline is known as Lindlar's catalyst. तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आपको ध्यान रखनी है। इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, इथेन विल बी फॉर्म्ड, बट इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट इथेन विल बी फॉर्म्ड। तो कैटलिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट, वन मोर important feature about catalyst is specificity. Specificity means
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखिए स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि कोई एक कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है और वही कैटलिस्ट किसी और रिएक्शन में भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए. इट डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज द नेचर ऑफ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन कि अ गिवन सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट ओनली इन पर्टिकुलर रिएक्शन, नॉट इन ऑल रिएक्शन. जैसे आपने पढ़ा है हैबर प्रोसेस में हम कैटलिस्ट ले रहे हैं आयरन, यहाँ पे हम आयरन नहीं ले सकते. तो इट इज स्पेसिफिक फॉर दैट रिएक्शन that will not use iron in all reaction to catalyze the reaction. यहाँ पे भी हमने नहीं लिया. We use in this reaction copper as a catalyst. We not use in Haber process copper as a catalyst. तो catalysts are highly specific in nature for a particular reaction कि a substance which act as a catalyst in one reaction may fail to catalyze other reaction. कि ऐसा नहीं है कि वो एक रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए तो सारी रिएक्शंस में अगर हम उसको यूज़ करें तो वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट वी स्टडी शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. देखिए शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस आर नोन एज जियोलाइट्स. एज द नेम it is clear that shape selective. So these catalytic activity depends upon the size and shape of the reactant molecules as well as the size and shape of the catalyst also. देखिए जर्नल फॉर्मूला जो होता है इन जियोलाइट्स का वो क्या होता है, mx/n. Here m is any metal cation, n is the charge on that metal cation. Here we use metal cation sodium ion, potassium ion और calcium ion. AlO2 whole X molecules, SiO2 whole Y molecules, and some water of crystallization is here. ZZ is the number of water of crystallization. So this is a general formula of shape selective catalysis zeolites. Chemically zeolites are known as aluminosilicates. केमिकली हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स. ठीक है. अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है फॉर्मूले में तो जियोलाइट्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म. बट व्हेन जियोलाइट्स हीटेड इन वैक्यूम, अगर हम हीट करें वैक्यूम में, देन ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट एंड जियोलाइट्स जो होते हैं दे बिकम्स डिहाइड्रेटेड, दे बिकम एनहाइड्रस. जहाँ जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, जहाँ जहाँ से वहाँ पे पोर डेवलप्स हो जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे. ठीक है. पोर्स आर फॉर्म्ड एट द प्लेस वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट. सो दिस शेप बिकम हाईली पोरस. तो इनकी शेप्स क्या बन जाएगी, हाईली पोरस. और दैट शेप, दैट जियोलाइट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर सर्टेन रिएक्शन. रिपीटेड. इफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट देन जियोलाइट्स आर इन हाइड्रेटेड फॉर्म. बट व्हेन दे हीटेड इन वैक्यूम they lose water molecules and then they become dehydrated, and pores are formed on that side where water molecules are lost, जहाँ से water molecule lost हुए. Then this give a highly porous structure to zeolites, just like a honeycomb structure. जियोलाइट्स की शेप कैसी होती है, honeycomb structure. बहुत सारे पोर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स इन दिस जियोलाइट शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. जो पोर्स का साइज होता है वो एक रेंज तक वेरी करता है, फ्रॉम 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर. ये साइज होता है पोर्स का. ठीक है. तो इससे हमें देखिए ओनली दोज रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर शेप एंड साइज कैन एंटर इनटू दैट पोर्स. ठीक है. इसी साइज के ही जो रिएक्टेंट और मोलिक्यूल्स होंगे वही इनके पोर्स में फिट हो सकते हैं, एंड देन दे गेट एब्जॉर्ब्ड और participate in a reaction. If reactant molecules are of bigger size या और very small size, इस रेंज में नहीं आते, या तो बहुत बड़े साइज में है या बहुत छोटे साइज के हैं, तो वो इन पोर्स में से निकल जाएंगे या फिर वो फिट नहीं हो पाएंगे. तो उनके लिए जियोलाइट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते. दैट्स वाई नेम गिवन शेप सिलेक्टिव. हाईली डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट्स विच गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ दैट कैटलिस्ट. तो ये बहुत ज़्यादा शेप और साइज पे डिपेंड करता है. तो दीज आर द माइक्रोपोरस 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट्स. देखो ये कैसे बनते हैं. जो सिलिका होता है SiO2,
अगर हम उस सिलिका में सम सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, अगर हम एल्यूमिनियम से रिप्लेस्ड कर दें तो बॉन्ड जो बनेगा इन दिस दे आर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन फ्रेमवर्क। तो इन कंप्लीट 3 डायमेंशनल नेटवर्क में क्या होगा, माइक्रोपोरस, बहुत सारे पोर्स होंगे इन अ डिहाइड्रेटेड फॉर्म, और बॉन्ड्स कौन से होंगे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन फ्रेमवर्क, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग सम सिलिकॉन एटम्स इन silicates by aluminium. So they give highly porous structures to zeolite. तो देखिए अब इसके इसमें बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसमें, देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स शेप सिलेक्टिव, बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स easily adsorbed on aluminosilicates. These molecules easily fit into the pores of the zeolites, but branch chain hydrocarbons as well as aromatic hydrocarbons not fit into the pores of the zeolites and not adsorbed on the surface of the zeolites. देखो, as branching increases surface area decreases, तो ब्रांच जो होंगे हाइड्रोकार्बन वो स्मॉल साइज के होंगे देन द साइज ऑफ देयर पोर्स, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो बिग साइज के होंगे देन द साइज ऑफ देयर पोर्स, तो फिट नहीं हो पाएंगे। तो ओनली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन एल्यूमिनोसिलिकेट्स। नेक्स्ट एग्जांपल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, when alcohol is formed, alcohol is converted into hydrocarbons, petrol, then we use a zeolite ZSM5. Because of its pore size, these pores are also known as molecular sieves. तो ZSM क्या है, zeolite sieve of molecular porosity 5, ये इनके साइज के पोरोस के बेस पे इसका नाम दिया गया है। दिस zeolite is used in petroleum industry for formation of petrol from alcohols. तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं zeolite ZSM5। नाउ ये आपने पढ़ा हुआ है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ये आपने +1 में पढ़ा हुआ है। वी यूज़ आयन एक्सचेंजर्स जियोलाइट्स, जो एक्सचेंज करेंगे आयंस को जो कि हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। तो वे हेयर वी यूज़ अ आयन एक्सचेंजर्स जियोलाइट्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। नाउ वन मोर टर्म, ऑटो कैटालिसिस। देखिए ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन स्टार्टिंग में अगर हम जब कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को कंबाइन करें तो बहुत स्लो स्पीड है रिएक्शन की, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज इन दिस वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एट इनिशियल स्टेज रिएक्शन इज स्लो, बट एज प्रोडक्ट फॉर्म कैटलाइज द रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बनेगा और वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। इन रिएक्शंस में क्या होता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दे ऑटो कैटलाइज द रिएक्शन, सेल्फ कैटलाइज कर रहे हैं, हमने कैटलिस्ट नहीं डाला इस रिएक्शन में, बट जैसे ही प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड स्पीड अप द रिएक्शन। तो दीज रिएक्शंस आर नोन एज ऑटो कैटालिसिस। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, स्लो इन द बिगिनिंग टू फॉर्म एन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। Once the acetic acid is formed, H plus ion of acetic acid act as a autocatalysis and then they faster the reaction. So hydrolysis of ester slow in the beginning and become faster at the end of the reaction या as the product will be formed. ये क्वेश्चन आपका NCERT में गिवन भी है, इसी फॉर्म में है कि in the beginning ester hydrolysis is slow but become faster as product will be formed, because as product will be formed H plus ion of an acetic acid act as a catalyst and then they auto catalyzes the reaction and faster the reaction. So clear? So this is all about catalysis and its type, homogeneous and heterogeneous catalysis, mechanism of heterogeneous catalysis, or these are all about shape selective catalysis zeolites. Now some important questions based on catalysis. Now do these questions in your notebook yourself. First question देखिए, why it is necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber process. अगर आपने आज का जो ये लेसन है अच्छे से पढ़ा है, सुना है, वीडियो अच्छे से देखी है, तो आप ये सारा अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चंस को, बहुत ईजी है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड
को क्यों नेसेसरी है रिमूव करना? बिकॉज आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ कैटालिटिक पॉइजन, मोलिबडेनम एक्ट एज अ प्रमोटर, in this iron act as a catalyst. What is the role of desorption in process of catalysis? Desorption play a very important role in process of catalysis. आपको पता है what do you understand by catalytic promoter? As you know, used to increase the activity of catalyst. Give one example. Role of diffusion in heterogeneous catalysis. ठीक है, ये भी आपको करना है. ये देखिए CO and H2 react to give different products in presence of different catalyst. Which ability of catalyst is shown by these reaction? ये आपका बोर्ड एग्जाम में CBSE 2018 में क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का. आपको बताना है विच एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट इज शोन बाय दिस रिएक्शन. बताइए, अगर CO और H2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट तो कौन सी एबिलिटी होगी? सिलेक्टिविटी. ध्यान रखना है इसमें, नॉट स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टिविटी. नेक्स्ट देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्लिसरॉल, एसिटेनालाइड, फॉस्फोरिक एसिड या ऑल ऑफ दिस. रिमेंबर, ये कराया मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में एग्जांपल कराया अभी. ये तीनों ही एक्ट करते हैं एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट और इस रिएक्शन की डीकम्पोजिशन को रोकते हैं. तो ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, इसमें आपको ये रिएक्शंस दी हुई हैं XYZ, प्रोडक्ट आपको बताना है क्या होगा, सीक्वेंस फॉर्म में ही बताना है रिस्पेक्टिवली. देखो तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या बनता है? इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड. ये आपको लर्न होगा, ये आप कीजिए, बहुत इजी है. अगर आपको रिएक्शंस लर्न है और आपने ये प्रोडक्ट आपको पता है सिलेक्टिविटी के बेस पे, तो आप ये इजीली कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सॉलिड कैटलिस्ट? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट देखिए, कैटलिस्ट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू कैटलाइज रिएक्शन. ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कीमी इज ऑप्शन. कैटलिस्ट चेंज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. डी ऑप्शन है, सम रिएक्टेंट्स में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है. आप बड़े आसानी से इसमें देखिए पता लग रहा है लार्ज क्वांटिटी में कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता. ये डिपेंड करता है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन पे. यहाँ लिख रहा है डज नॉट डिपेंड्स, तो ये भी गलत है. चेंज करता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नहीं चेंज करता, तो ये भी गलत है. सेम रिएक्टेंट्स में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट. ये हमने अभी पढ़ा है सिलेक्टिविटी, एक फीचर पढ़ा था ना कैटलिस्ट का, सिलेक्टिविटी, उसके बेस पे था. तो ये डी ऑप्शन है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैटलिस्ट इज. सो रिवाइज दिस टॉपिक अगेन फ्रॉम द वीडियो and read this topic from NCERT book also and solve the other questions, other conceptual questions, 1 marks questions related to all these topics, adsorption or catalysis, friendly adsorption, isotherm and all of these. So thank you.